Good evening, everyone. Facebook, hi, Instagram, and YouTube, guys. What's up, everyone? Hi, good evening. So today's live session is very special because we have a special guest logging in with us today, and in some time, in just next 2 minutes, I'm going to invite him to my chat. So how's everyone doing? A warm hello to everyone joining in today in my live stream. How's everyone doing? Good evening. And I don't know why I can't see the names on my YouTube again. So I need to log in again. And also, this chat is a huge problem. So how do I scroll up the comments? Great. Hi, Nitish Tripathi, Vikas Kumar. I can see you guys now. But there is some issue that I can't see myself. Can you guys see me on my Instagram? Can you guys see me? Just tell me if you are able to see my face. Are you guys able to see my face? Yeah. Okay, great. Hi, Amit Pandey, Vikas, Nitish, BCom, everybody. Good evening. Good evening, people on my Facebook. I am going to be adding very soon let me add Vikrant on my chat. So good evening, good evening, good evening. Richa Nagpal says, I don't hear you. Are you able to hear me? Richa, are you able to hear me? I just increased the volume to full. So can you just check if you can hear me? Just 1 second. Great. So hi guys, hi Organic Fitness Hub, Aditya Jaiswal, Shubham, Rathi, Chaitanya Patil says you're real life Santoor mommy. Wow. I used to watch that song when I was a kid and I used to love it. Vikas Kumar says your hairstyle is awesome. I just finished a yoga class and this is a bad hair day when your hair is not washed. You did not have time. It's dirty. So all you do is just like make it into a hairstyle like this. So that's what I did. You are a diva of yoga, Abhishek Saini. Thank you so much. If my daughter was here, she'll say I'm a diva otherwise. Thank you, Rocky Ponting. How are you? Yes, I'm going to add Vikrant very soon now in my chat. Thank you, Jaiswal, Nishan Shurivanshi. Mridul Agarwal says, I'm a huge fan of you. Thank you so much.
Guys, 1 minute. Can you guys hear me on my Instagram? Hi, V. Hi, Welcome. Garima. How are you? I'm very मैं good. So I was the waiting. final date is over. Everybody was waiting for you. बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. When is Vikrant going to join? So देखिए, I'm finally, here. finally our chief guest is here. Vikrant, अरे those of you who don't know, is the numero uno of the sports world. And he is equally an amazing person. He's heading the as an executive sports director, editor in Aaj Tak and India Today. And he's a wonderful, awesome human being also at the same time. So all qualities put together in one person, and we all very well deserving. finally, we're doing this live. मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ. I keep watching your Instagram lives. आपने बड़ा amazing इस लॉकडाउन के दौरान you putting out videos day 1, day 2, day 3 ऐसे करके. तो मेरी योगा तो बंद हुई है आजकल. जो मैं योगा सेशंस करता था, but then looking at your videos, मैं ट्राई करता हूँ कि जब 5, 7, 10 मिनट मिले तो फटाफट क्विक ones वो मैं I try to do. That is so nice because fitness की तो आपने मिसाल दी हुई है सबको खुद ही. I फिटनेस don't तो know अब how you manage so many things because you're physically fit. I see you, like I see your stories too, and you're batting at home, you're spending time with the kids, and then you're there on the screen, sending this news every day at work. Hats I off also clean to you. utensils. I do the utensils and I also do jhadu and everything.
मतलब इस लॉकडाउन में मे बी आई हैव री इन्वेंटेड माई सेल्फ। जो बचपन की टिपिकल मिडिल क्लास आदतें थी ना, वो सारी की सारी दोबारा वापस आ गई। जैसे कि खाना बनाया जैसे आपने? खाना मुझे नहीं आता, बाकी मैं आई क्लीन यूटेंसिल्स, मैं बर्तन करता हूँ, मैं झाड़ू पोछा तो खैर मेरा रोज का काम है। एंड आई मतलब ये नहीं मैं कहूंगा कि मैं एक्सरसाइज के लिए करता हूँ, बट देन आई फाइंड कि जब आप झाड़ू पोछा करते हैं यू स्वेट अ लॉट और आपकी फिटनेस भी हो जाती है। पोछा लगाना तो बेस्ट हिप ओपनर है, मतलब इफ यू ऑन द फ्लोर एंड यू मॉपिंग, इट्स लाइक अ बेस्ट हिप ओपनर एक्सरसाइज आल्सो। एग्जैक्टली। और अभी अभी हमें शिफाली ने भी ज्वाइन किया है, तो शिफाली सेइंग व्हाट्स अप गाइस। तो शिफाली आज गरिमा इज गोइंग टू टीच अस इस लॉकडाउन में फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस क्या चीज है। बिकॉज एक तो फिजिकल फिटनेस तो है ही है ऑब्वियसली, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि चलो कम खाना खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, बट मेंटल फिटनेस मुझे लगता है गरिमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि शुरू शुरू में लॉकडाउन हुआ, 5 दिन 7 दिन 12 दिन 15 दिन, मेंटली मुझे लग रहा है कि पीपल आर नाउ बिगिनिंग टू क्रैक अप। उसको हाउ डू यू ओवरकम दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सही बात कही आपने। एक तो ऑलरेडी जो 2020 है ना विक्रांत, वो बहुत ही दुख भरी घटनाओं से शुरू हुआ है। एग्जैक्टली अगर मैं तो अभी यही बोल रही थी कि एक रीसेट और रीस्टार्ट अगर बटन होता तो आई वुड हैव रिक्वेस्टेड गॉड टू रीस्टार्ट इट, बिकॉज आज ही इतनी दुख भरी खबर फिर से आई है कि एग्जैक्टली ऋषि कपूर जी नहीं रहे हमारे बीच में। अभी इरफान जी के डिमाइस से हम लोग ऑलरेडी, जो इतना बड़ा सदमा और शॉक लगा पूरी इंडस्ट्री को, इतने बड़े लेजेंडरी 2 स्टार्स चले गए हैं। और ऑलरेडी लॉकडाउन में सबका जो मनोबल है वो इतना ज्यादा शेकअप हो गया है, ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप घर पे 24 घंटे लॉकडाउन है, आपके बच्चे पार्क नहीं जा सकते हैं, आप अपने काम पे नहीं जा सकते, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, और ये कब खत्म होगा ये भी किसी को नहीं पता है, रियल पिक्चर नहीं आ रही है। और मैंने तो अभी ये भी सुना है कि शायद आगे कर्फ्यू एक्सटेंड होगा, विच इज गुड, 100% होगा, सबकी, क्योंकि सबके 100% लिए होगा। बहुत सबके हित में है ये डिसीजन, तो होना भी चाहिए क्योंकि इसको रोकथाम करने का एकमात्र वही तरीका है। बट ऐसे में जो ख्याल आ रहे हैं ना, उनको मैं लोगों को बस ये बोलना चाहूंगी कि वो थॉट्स को आने से नहीं रोके। थॉट्स तो भाई एक फ्री मीडियम होता है, आएगा ही आपके, बट आपको किस तरह के थॉट्स को रिटेन करके रखना है वो आपके ऊपर है, और किसको लेट गो करना है वो भी आपके ऊपर है। सो अगर आप थोड़ी बहुत 10-15 मिनट की अगर टाइम निकाल के कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि सारा का सारा ध्यान और फोकस तो वहीं चला जाएगा। तो आज आप करके दिखाएंगे, आज आप करके दिखाएंगे 100%, थोड़ा बहुत? 100% हम साथ में करेंगे, क्योंकि मैं भी करेंगे। आई वुड ऑल्सो वांट टू रीलर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गरिमा क्या हो रहा है ना, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। कभी मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं लोगों के, जब आप मेंटली जब इस तरह की सिचुएशन आए, कभी कभी आप ठीक रहते हैं, कभी कभी आप अचानक से यू गेट टेंस्ड, है ना। कभी कभी इंसान पैनिक करता है, पैनिक कुड बी जॉब रिलेटेड, कुड बी एनीथिंग। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर जिस तरह से भी आप उसको मैनेज करना चाहिए। आई थिंक मेरी आवाज बाउंस बैक हो रही है शायद। आप I have done it on full volume now because I was getting a request from people that they are not able to hear me. Okay, so अच्छा। so that's why तो मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलिए। नहीं, that's why I increased the volume. Okay, Vikrant, before we go into the yoga part, I quickly wanted to enlighten my male followers here, because मैं जो हूँ ना हर समय बस लड़कियों की ग्रूमिंग और लड़कियों की ये सब, since you are so handsome and always well kept and well groomed, especially मैं आई विल सेव दिस क्लिप, मैं इतना क्लिप को सेव करके रखूंगा। No, you have to definitely give your viewpoint to the male viewers here, please, कि सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करेंगे। बिकॉज अब तो सैलून भी बंद है, आपके स्टाइलिस्ट भी क्वारंटीन है, तो आइसोलेशन के टाइम में हाउ टू कीप योरसेल्फ like looking fit and looking always like made up and nice, please advise। दो चीजें हैं, देखिए मेरे तो ये है कि बालों की जो ग्रोथ है वो ठीक है इस उम्र में भी। तो मैंने 1 महीना पहले घर में एक्सपेरिमेंट किया, वो यहाँ से थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर मैंने यहाँ से किया, ये थोड़ा और ज्यादा हो गया। तो करते करते इट गॉट टू अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे ये सब काटना पड़ा। खैर बाल वापस आ गए हैं, लेकिन
मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन में अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि यार मेरे बाल अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, तो शायद आप अच्छा फील नहीं करेंगे। मैं तो हर रोज ये फील करता हूँ मुझे कोई देख ही नहीं रहा। लोग तो वंडरफुल। इतने बाहर मिलते नहीं, आई कम टू ऑफिस, और तो मैं ये सोचता हूँ मुझे कोई देख ही नहीं रहा। सो आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। मैं आपको सच बताऊं, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप यू आर योर सेल्फ, आप यू आर आपके नॉट लिए ट्राइंग टू कमेंट्स आ रहे बी। हैं अच्छे अच्छे। विक्रांत भाई अरे हमारा बहुत हैंडसम है। नहीं थैंक यू, आपने बोल दिया तो अब लोग उसको जरूर कॉपी नहीं करेंगे। नहीं, तो यू आर वेरी आप नॉटी। मैंने देखा ये सब मेंटल है, ये सब मेंटल है। मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है ये अपनी सोच है ना। तो मैंने इस जब से लॉकडाउन है मैंने कोई प्रेशर लिया ही नहीं कि यार टैनिंग हो गई, या मेरे बाल नहीं कटे, या मेरे कपड़े आज क्या पहने। मैं बिल्कुल बिंदास तरीके से, और मुझे लग रहा है कि वो मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, बिकॉज अब मैं टेंस्ड नहीं हूं, मैं शायद किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं हूं। तो दिस इज वन ऑफ द मतलब थिंग्स दैट आई हैव लर्न्ड। दूसरी बात यह है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो 6-7 हफ्ते से यार मैच ही नहीं हुआ, तो मेरा गर्मी का एक्सपोजर थोड़ा कम हो गया। उससे ये नहीं कि मैं गोरा हो गया हूँ, लेकिन मेरी टैनिंग थोड़ी कम हुई है। या टैनिंग थोड़ी 100%। कम हुई है, तो ये मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बिग चेंजेस। So what बड़े is मेरे the बाल यहाँ से बड़े हुए तो मुझे अच्छे लग रहे हैं बल्कि। absolutely yes side? In fact, I'm seeing so many cricketers yesterday. The sports people yesterday, I saw Djokovic wife doing his hair, and he was like not bad. So everybody has come to this self grooming and self cutting. सचिन कट इज ओन हेयर। सचिन तेंदुलकर ने Wow, भी अपने बाल काटे थे, उन्होंने वीडियो भी डाला था उन्होंने, और this is हर so कोई कर रहा है। amazing. So what मैं about तो the अपने physical बच्चों के साथ fitness? कंपटीशन कर रहा हूँ। ईशान आरव के जो हेयर बाल स्टाइल है, बढ़ाने की या काटने की? नहीं काटने की भी, उनके भी मैंने काटे हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ बेटा अब कंपटीशन अब मेरे साथ है, यू आर अच्छा, कम्पीटिंग विद मी। okay. I तो don't get time to wash my hair, so everybody's thinking I've done a hairstyle. It's actually bad day hairstyle जब आपके पास बाल धोने का टाइम नहीं था। ये अगर तो बैड है तो मतलब अब मैं बाकियों का गुड क्या मतलब होगा, तो आप ये अंदाजा मेरे लगाइए। नुस्खे हैं लड़कियों के लिए, तो आज मैंने सोचा कि आपके जो नुस्खे हैं वो सब मेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिजिकल फिटनेस। विक्रांत, घर पे स्पेशली नाउ यू आर इन एवरीडे डूइंग लाइव विद सो मेनी स्पोर्ट्स पीपल एंड सो मेनी cricket personalities. So how is everybody taking up to this home fitness? Are they self motivated, or is it because of their profession that they have to do it, or they really want to do it? नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज गरिमा दो तरह के लोग हैं ना। एक तो जो स्पोर्ट्समैन है, वो इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, वो उसको तो वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा, भाई मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर ये लॉकडाउन 2 महीने है, तो स्पोर्ट्स में सिर्फ पतले रहने से या 6 पैक एब आने से आप फिट नहीं हो जाते। They हेल्थ need और to run. वाइटैलिटी चाहिए। They have to या run. They have to run. टांगों में भी तो जान चाहिए ना, तो सिर्फ वेट्स उठा के तो बंदा फिट नहीं हो जाता। तो वो रनिंग कहाँ से करना है, एंड दे आर वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वेट पुट ऑन नहीं करना है। कभी कभी ये भी होता है कि व्हेन यू डोंट ट्रेन फॉर अ मंथ 20 डेज, आप शायद प्रेशर रिलीज भी करते हैं। मैनी ऑफ देम आर सेइंग कि जी शायद हम वी आर रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज, और इतने लगातार स्ट्रेस जो थी, फटीग था, नाउ दे हैव टू ट्रेन। रनिंग इज वन एसेंशियल थिंग जो हर स्पोर्ट्समैन को चाहिए। वो हो गया। दूसरा आई थिंक खाना, और दूसरे तरह के लोग हैं हमारे जैसे। रनिंग अब कैसे, मतलब हमारे घर पे ट्रेडमिल पे रनिंग यू सेइंग? आप ट्रेडमिल रनिंग लेकिन कितनी कर सकते हो गरिमा, एंड इट इज नॉट सेफ। नो, ट्रेडमिल की रनिंग जो है आपकी दैट्स द नीज के लिए अच्छी नहीं है, नहीं नहीं। नीज के लिए अच्छी नहीं है। आप पुराने जमाने के प्लेयर्स को देखिए, आप ग्रेट कपिल देव को देखें या बाकियों को देखें, वो लोग मैदान पर भागते थे, दे यूज्ड टू रन, बट अब दे कांट रन, अब रन नहीं कर सकते। आई थिंक योगा इज न्यूअर कॉन्सेप्ट में कहूंगा, पिछले 8-10 साल में ही क्रिकेट में आया है। पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई करता था, अब आई थिंक एज अ टीम दे डू योगा। और मुझे याद है आज से आई थिंक 2.5 साल पहले व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, आपको याद होगा हमने एक शूट किया था, आपने मेरे पहले साथ तो शूट बहुत किया सारे था, थे, बट जो डेफिनेटली फर्स्ट शो, फर्स्ट वन जिसमें मुझे याद है मुझे बैक का बड़ा इशू था। आपको याद होगा मुझे बैक का बहुत इशू था, साथ और में आपने किया मुझे था। कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई थी। सिंस दैट डे मैंने आहिस्ता 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 वो करना शुरू किया, इनकॉर्पोरेट किया उसको।
और आज शायद आपने वो मोटिवेट किया, मुझे रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मैं उस मच। सिचुएशन में आ गया हूँ जहां पर मुझे बैक पेन नहीं है। आई पुट ऑन वेट, आपने वो भी देखा है, आई पुट ऑन वेट। अब शायद वो भी कम हो गया है। और एक चीज जो मैंने पिछले 10-12 महीने में की है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। Very nice. So what time do you eat? What is your window? Intermittent fasting again, गरिमा, last year when I went to England for the World Cup, उससे एक महीना पहले मैंने की। So first three months I was very regular. मैं हफ्ते में 3 दिन करता था। मीठा मैंने एकदम छोड़ दिया। In spite of being a पंजाबी, मैंने मीठा छोड़ दिया। तो That's a मैंने big factor. मैं फीकी चाय अभी भी पिए, फीकी चाय। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मेल्स और फीमेल में फर्क है। फॉर अ मेल इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए 16 घंटे की। मतलब 16 घंटे आप नहीं खाएंगे, 8 घंटे आप खाएंगे। आज जैसे मैं इंटरमिटेंट कर रहा हूँ, तो मैंने आज शाम को 6 बजे अपना लास्ट मील ले लिया। अब मेरा नेक्स्ट मील जो होगा वो कल सुबह 10 बजे होगा, 10 o'clock। एंड मील डजंट मीन कि जी सिर्फ मील और मेरा दिल किया 2 मूंगफली के दाने। नो, मशीन बंद हो गई। आई कैन हैव ग्रीन टी ले सकता हूँ, ब्लैक कॉफी ले सकता हूँ, कल सुबह उठ के एक चाय भी ले लूंगा। लेकिन मूंगफली का एक दाना भी या एक फ्रूट या कुछ सॉलिड मैं 10 बजे से पहले नहीं ले सकता। अच्छा, So 16 hours I can't eat. Okay. And for females it's 14 hours. Suppose आप हैं तो आप 14 घंटे, आपने सपोज कीजिए 8 बजे लास्ट मील ले लिया, देन 10 o'clock in the morning, या आपने 6 बजे लास्ट मील ले लिया तो फिर 8 बजे कल सुबह आप लिक्विड ले सकती हैं, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, चाय, बट हैवी नहीं। उससे 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपका डिटॉक्स होता है। आपके पेट में, जो मैंने इसकी रिसर्च देखी थी कि कुछ ऐसा होता है कि आपकी मशीन उसको बर्न कर देती है। मेरा मेटाबॉलिज्म ऊपर चला गया, मेरे बैक पेन चली गई, बिकॉज आपके कहते हैं बैक में गैस अटैच होते थे, वो खत्म हो गए। एंड फॉर फीमेल्स ऑल्सो इट्स वेरी गुड, और मुझे लगता है इसको करना चाहिए। एक चीज जो मैंने की है वो है मीठा छोड़ दिया, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। आई लॉस्ट अबाउट 8-10 kg इन अबाउट 2 months जब मैं इंग्लैंड में था। sugar यस, 10 kg। एंड मैं इंटरमिटेंट भी 3 या 4 दिन हफ्ते में कर रहा हूँ। 2 months। Wow. No 2 sugar months भी नहीं थे, like इनफैक्ट no maida, no artificial. नो शुगर मीन्स चाय फीकी, नो मिठाई, नथिंग, No desserts. मैदा। अगेन अब फिर कॉन्शियसली आप शुरू हो जाते हैं, बिस्किट्स नहीं खाऊंगा, तो बिस्किट भी में नहीं वैसे खाऊंगा, अच्छा, पर मैं रस खा लेता हूँ। ओके, बिस्किट भी तो मीठा ही है ना। तो हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ये नहीं कहा जाता कि नहीं आप सिर्फ इतना ही खाएं। द मोर हेल्दी यू ईट द बेटर द रिजल्ट्स, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी टेम्पटेशन को मैंने किल किया, और जैसे मैंने कहा इन अबाउट 2 months आई लॉस्ट अबाउट 8-10 kg, एंड उसके बाद रिड्यूस हो गया। कहते हैं ना आपका पेट तो इट्स लाइक अ थैला, थैले में जितना सामान डाल दो बड़ा हो जाता है, छोटा कर दो, छोटा कर दो। तो अभी जैसे मैं इरेगुलर हूँ, लास्ट इंडिया में चैलेंज आता है हमारा अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स, फेस्टिवल सीजन, जहां पे आप इतना खाते हैं, मिठाई भी आती है, एंड वी ईट। देन द विंटर्स अगेन मैं 2-3 kg आई पुट ऑन, ऊपर चले गया। बड़ा फॉर्चुनेट, बिस्किट मेरे लिए मजाक के तौर पर दिए गए हैं, लेकिन नहीं, समोसे भी आ रहे हैं। बट लॉकडाउन में भी विक्रांत यही हालत है, क्या कर सकते हैं। हर जना यही बोल रहा है कि हमारा हर समय कुछ खाने को मन करता रहता है, अपने आप ही अटेंशन फ्रिज की तरफ लेके जाती है कि फ्रिज में से कुछ निकालें और खाएं, जस्ट टू वार्ड ऑफ दोस हंगर पैंग्स। तो उसके लिए क्या करें, कैसे अपने आप को, आपने इतना जो स्ट्रॉन्ग अपना मोटिवेट अपने आप को कैसे किया कि आई विल नॉट ईट मीठा? यार आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड। मैं आपको सच बताऊं, मैंने जिंदगी में तो सोचा नहीं था कि मैं मीठा छोड़ दूंगा। मैंने जिंदगी में तो नहीं सोचा था मैं कि फीकी चाय पीऊंगा। मैं झूठ नहीं है, सब सच बोल रहा हूँ। वो कह रहे अभी मैंने सारी चॉकलेट जो कैंटीन की वो खत्म की है, वो मैंने की है। लॉकडाउन में मैंने बहुत खाया, पर कल से मैं फिर ठीक हो गया, काम भी तो आपने क्योंकि इतना किया है। नहीं तो अब लॉकडाउन में मेरा भी यही है, वी आर ईटिंग अ लॉट। और उसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बिकॉज आप कहते हो यार खाना, तो आप फ्रोजन फूड ले आते हो घर में, आप बिकॉज टेस्ट है ना आपका, आप फ्रोजन फूड ले आए, आप ये ले आए, वो ले आए, चलो खाते रहो। और जब मैं घर होता हूँ मैं खाता ही रहता हूँ। लेकिन एक दिन आता है ना जब अलार्म बेल्स, तो मेरे लिए वो परसों आ गया था। कल मैंने पहला दिन इंटरमिटेंट किया आफ्टर पता नहीं 2-3 months, आज भी करूंगा।
एंड फॉर्चुनेटली आई रियलाइज गरिमा कि मैं 1 हफ्ता जब करता हूँ आई रिड्यूस इट, मेरा 1 हफ्ते में टचवुड दोबारा ठीक होता है। तो देखिए प्लस माइनस तो चलता ही रहेगा। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं ये ओवरवेट है, कोई और किसी और के बारे में हम कभी नहीं कहते ओवरवेट है, ये आप साइकोलॉजी समझिए। हमेशा कहते हैं यार मैं मोटा हो गया हूँ, यार मैं मोटी हो गई हूँ, मैंने ना थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया। सामने वाले को नहीं पता चलता, इट इज ऑल मेंटल। हम खुद अपने आप को कह देते हैं। सामने वाले को आप 2 किलो ऊपर चले गए, 2 किलो नीचे, क्या फर्क पड़ता है? इट इज ऑल हेयर। हमें कपड़े अच्छे पहन सकते हो, व्हेन यू आर फिट आप कपड़े अच्छे पहन लेते हो, दैट्स इट, यू फील गुड। बाकी 1 kg दिस साइड 1 kg दैट साइड, हाउ डज इट मैटर? लोग मुझे कहते थे जब मैं इंग्लैंड से आया, अरे यार आप बीमार तो नहीं हो गए हो, अपना हाल देखो। तो मैंने कहा यार मैं तो बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। नहीं आप मोटे अच्छे लगते हो। और मैंने कहा बस करो यार। Opinion of others is like so much that so many times it drives us that, you know, but what people don't understand is that they feel that it's the fitness industry is just ruling only because of mota and patla, but people have to understand Exactly. it's also internal fitness, vitality and health and longevity. जैसे कि आप वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 14 घंटे काम करना पड़ता है, so it cannot happen unless you have the energy. वही गरिमा आई वांट, आप अगर थोड़ा सा शेयर करें। आई थिंक क्या हो रहा है कि मेरी जो आवाज है ना शायद आपकी स्पीकर से वापस आ रही है, तो आप ज्यादा बोल के या आप करके अगर दिखाएंगी तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड। बिकॉज कोरोना वायरस ही ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस हम कह रहे हैं कि मेडिकेशन कब आएगी, ये क्या होगा वो क्या होगा, लेकिन बेसिकली आपकी इम्यूनिटी से लिंक है ना। जिसकी इम्यूनिटी बेटर है वो better position में है तो I'll keep walking and I'll just get my headphones also in the meantime. Yes. So that people are getting, maybe they want to hear you but they are not able to. So yes, Vikrant, continue please. नहीं तो मैं what I was saying was गरिमा की immunity पे सब कुछ आ गया. Yes. So immunity क्या है आपकी? आप अच्छा खाते हो, टाइम पे खाते हो, yeah. तो लोग घिया खा रहे हैं, मुझे तो घिया पसंद नहीं है, लोग कह रहे हैं घिया खा लो। दाल, वो क्या होता है दालचीनी कहते हैं जो, उसके मेथरे उनको पानी में भिगो के पी लो, दैट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो हमें ये जो नेचर और नेचुरल चीजें थी, इट इज टाइम टू गो बैक टू देम। यस, आयुर्वेदिक साइंस जो है। जस्ट वन सेकंड, मुझे लग रहा है आपने हेडफोन्स लगा लिए शायद। नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट नाउ। ओके, बट अब मेरी आवाज बाउंस बैक वैसे कर नहीं रही। Maybe so that means in the room. Just can you hold this? It is much better now. Yeah, are you able to hear me better? Yes, I can. मेरी आवाज आ रही है? Yes. So we can ask everybody. अब क्या आवाज बेटर है? If you can give us the feedback, please. चलिए. Great. Okay. So. Fine. I think Vikrant, from your end. Manoj is here. The guinea pig. Manoj, how is it? It's better now. Let's go. अब ठीक है. Great. Yes, Vikrant, you were saying something. तो मैं ये कह रहा था कि जो आप बात करती हैं कि मेंटल फिटनेस, वो if you could demonstrate आज के जब दिन शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉर अ स्पोर्ट्समैन या जिसने वेट लूज करना है या जो बड़ा फिट है, 6 पैक, नहीं, तंदुरुस्ती के लिए जब आप सुबह उठते हैं, बिस्तर पर उठते वक्त जो 2 छोटे एक्सरसाइजेज हैं वो क्या होनी चाहिए? आप जब स्ट्रेस ज्यादा होती है तो हाउ डू यू कोप विद स्ट्रेस? आप स्ट्रेस से कैसे कोप करती हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज क्या हैं? जब आप थक जाते हैं 5 मिनट में वो बूस्टर आपको कैसे मिल सकता है? सबसे पहले तो योगा की जो प्रैक्टिस है, बस मैं उसके लिए एक लाइन लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, जो भी इस समय हमारे साथ ऑनलाइन है, बस उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि योगा एक एक्सरसाइज के नजरिए से उसको नहीं देखें। जैसे विक्रांत जी ने इतनी सारी बातें कही कि हम अपनी इम्यूनिटी, हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, तो ये एक इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी साइंस है, जिसमें हम माइंड को भी साथ में टेक केयर कर रहे हैं, और बॉडी में जो भी चीजें आ रही है ना,
एज अ गिफ्ट आ रही हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, या आपकी स्ट्रेंथ एग्जैक्टली बढ़ी है, आपका मसल मास बढ़ रहा है, बोन डेंसिटी बढ़ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें जो अभी हमें चाहिए, एक्चुअली तीन चीजें मैं बोलूंगी। जो ये वायरस है कोविड-19, वो सबसे पहले हमारे लंग्स को बिल्कुल वीकन कर देता है, और जो कि हमारी वाइटल एनर्जी है, प्राणा है, जहां से हम ब्रीथ करते हैं, तो लंग्स ही अगर ब्रेक डाउन हो गए तो इसलिए लंग्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं तो 80% अपनी लंग्स की कैपेसिटी को यूज करते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर हम विक्रांत, अगर मैं किसी को बोलूँ ना, कोई मेरे को आके बोले कि आज हमने 1 घंटा भी योगा की प्रैक्टिस करी, बट अगर उसमें साथ में उन्होंने ब्रीदिंग नहीं डाली, तो फिर वो 1 घंटे की प्रैक्टिस भी पूरी वेस्ट हो गई। तो सारा जो प्ले है, जो इंटरप्ले ऑफ दिस होल आसना प्रैक्टिस इज एक्चुअली ड्रिवन बाय मूवमेंट विद ब्रेथ। तो ब्रेथ को कंबाइन करना बहुत जरूरी है। तो उससे आपका क्या हुआ, पहली चीज जो मैंने बोली, तीन चीजें हैं। पहली चीज, आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हुई। दूसरी चीज ये हुआ कि जो आपका खुद का जो बॉडी का, जैसे कि आपने बोला इम्यूनिटी, जिसको कि हम डिजीज फाइटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, हमारे जो लड़ने की शक्ति होती है, डिजीजेस को लड़ने की शक्ति होती है बॉडी में, वो जो हमारी इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हुई, वो नेचुरल इंक्रीज हुई। तो वो वायरस को बोल सकती है, बाय यू हैव नो प्लेस इन माय बॉडी, यू कैन फाइंड सम प्लेस एल्स। सो वो आपकी इम्यूनिटी उसको सीधा रास्ता दिखा देगी। तीसरी चीज है, जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से, तो वो स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली, जो स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में, स्ट्रेस कहाँ से आता है, हार्मोन से आता है। जो स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स होते हैं वो हैप्पी हॉर्मोन्स को सैबोटाज कर देते हैं। तो वो जो स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स हैं उनको ऑटोमेटिकली एम्पावर कर देता है, इनकैपेसिटेटेड कर देता है। और जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं उनका रिलीज होता है बॉडी में, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी सेल्स रिलीज होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं, एग्जाइटी होती है, वो कम हो जाता है। सो ये तीन चीजें हमें योगा की प्रैक्टिस से ऑलरेडी मिलती हैं। एंड बेस्ट इज, इसके लिए आपको जिम नहीं चाहिए, इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं आपको चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ एक गाइड चाहिए जो आपको ऑनलाइन गाइड कर सकता है, जैसे कि मैं। आपका और यूट्यूब आपको चैनल चल अपनी रहा है? आपने यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल चल रहा बना है। लिया? एवरी डे मैं यूट्यूब में क्लासेस लेती हूँ लाइव, एवरी डे मैं बुक माई शो में क्लासेस लेती हूँ लाइव। तो आप अपने फिटर्निटी चैनल का ऐप है। नाम तो बता दीजिए। चैनल का नाम है गरिमा भंडारी। जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज आके कर ले। यूट्यूब पर मेरा चैनल है You have to गरिमा be the भंडारी। biggest salesman or saleswoman of your own stuff. आपने अपने यस, YouTube चैनल का नाम ही नहीं लिया तो लोग कैसे जानेंगे? आइए प्लीज, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गरिमा भंडारी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग विक्रांत, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड। सो प्लीज कम एंड ज्वाइन मी। अगर जिसको भी ये क्लासेस फ्री हैं, सो अगर आपको इंटेंशन है, इंक्लिनेशन है कि आपको ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बट समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें, तो बस अपनी मैट लेकर आइए और बाकी सब कुछ मैं आपको मार्गदर्शन दूंगी, राह बनूंगी आपकी ये प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। सो सबसे आसान तरीका विक्रांत, जो ब्रीदिंग जब मैं बता रही थी, वो योगिक ब्रीदिंग में ये होता है कि हम अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं, मुंह से नहीं लेते हैं। तो वैसे तो पैसिवली हम ब्रीथ कर ही रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, तो हम ब्रीथ कर रहे हैं। बट योगा की ब्रीदिंग में हम नेजल पैसेज के जरिए अपने जो ब्रेथ है, ऑक्सीजन है, उसको डीप लंग्स तक लेके जाते हैं और वहीं से एक्सेल करते हैं। एंड बेस्ट तरीका इसको करने का होता है कि जब आप बीच में इसमें कुंभक भी कर दें, मतलब कि 2-3 सेकंड के लिए ब्रेथ को अंदर रिटेन कर दें। तो वो क्या होता है कि अंदर जो इंटरनल बाथ होता है ना बॉडी का, बाहर से तो हम रोज ही ले रहे हैं, बट इंटरनल वो जो ब्रेथ होती है वो इंटरनल क्लेंस कर देती है बॉडी का और फिर बाहर आती है। तो वो जरूरी है उसको करना। तो वो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसे इस समय आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस से कर सकते हैं, आप कम्यूट में हैं, जैसे आप नोएडा से गुड़गांव जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। और जो जहां पे भी है, अपनी जूम की कॉल ले रहे हैं अगर कोई ऑफिस से, घर से, तो वहां पे कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है आई वुड से ब्रीदिंग की, क्योंकि हर किसी के पास आसन की प्रैक्टिस करने का आजकल टाइम नहीं होता। घर के इतने काम है, बच्चे घर पे हैं, फिर ऑफिस की कॉल्स हैं, कैसे करेंगे, डेडलाइंस है बहुत सारी, बट टाइम नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कहीं पे भी बैठे बैठे बस ब्रीदिंग कर लो, ब्रीदिंग समझ लो। आपने लंग्स को बचाना है इस समय, अपने दिमागी हालत को बचाना है, उसको कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है, और वो योगा से हो सकता है। क्या आप छोटा सा एग्जांपल दीजिए, मतलब आप बैठे हैं एंड यू आर जस्ट
आप नौसिखिए हैं, आपको नहीं पता कि टेक्निकली ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। हम तो सांस तो लेते हैं, जैसे आपने कहा नोज से लेना है, टेक्निक्स क्या है? यस, जस्ट 1 मिनट, बिकॉज मैं ये फैन की ना, मेरे घर में इतनी साउंड है। अभी हमारे एसी सब खराब है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियंस ना आ सकते हैं ओहो। और ना सर्विस हो सकते हैं, तो बड़ी बुरी हालत है। और गर्मी तो बढ़ पंखों, गई है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही गर्मी है। बढ़ गई है, मच्छर का प्रकोप नोएडा में बहुत ज्यादा है, तो ओ। यही हालत है। बस चल रहा है अभी काम बिना एसी के। सो सबसे पहले आप जहां पे भी, कोई भी अगर हमारे साथ अभी प्रैक्टिस कर रहा है, तो बस मैं ये अर्ज करूंगी कि बैठे बैठे आपको अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, उसको स्कूप डाउन और कोलैप्स नहीं होने देना। जितनी बार भी आपको लग रहा है कि आपकी बैक ऐसे गिर रही है, कोलैप्स हो रही है, उतनी बार अपने चेस्ट को लिफ्ट करें, एक्टिवेट करें और ऊपर की तरफ आए। दूसरी चीज सीधा। ये है कि जैसे मैंने बोला, हाँ, जैसे मैंने बोला कि लिप्स बंद होंगे और नाक से सांस लेंगे, और अपनी जो सांस है उसकी ध्वनि को हमें सुनना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इनहेल, और रेशियो समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं इनहेल करती हूँ 2x के लिए, तो मैं रिटेन करूंगी, यानी कि अपने बॉडी में रखूंगी उसको 4x के लिए, 4 टाइम्स, और एक्सलेशन जो है वो मेरा शायद 6 टाइम्स या 8 टाइम्स लंबा हो, अच्छा, 2, 4 and 6 इज द or रेशियो। 8, whatever. Yes. ओ। So let's see. चलिए, आई विल ऑल्सो So डू। yes. So we inhale. सपोज आपने 4 ब्रेथ्स किया, अब आप रिटेन कर रहे हैं विदाउट एक्सेलिंग। 4, 5, 6, एंड देन वी स्टार्ट एक्सेलिंग। एक्सेल जो है वो भी नोज से होगा या वो लिप से वो भी आएगा? नोज से, नोज से। ओके। लिप के एयरवेज हमें यूज नहीं करने हैं, वो तो हम, वो एक्चुअली लिप का एयरवेज जो है वो हमारे बात करने के लिए बना होता है। असली ब्रीदिंग हमारी नेजल से ही होती है, तभी हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। सो वी इनहेल फ्रॉम द नोज, और अपनी ब्रीदिंग को सुनना है, हियर करना है, और फिर हम रिटेन करेंगे फ्यू ब्रेथ्स के लिए। 8, 9, 10, and then we start exhaling. अभी मेरा तो इतना ऐसा हम परफेक्शन जितनी नहीं है। बार, नहीं, but I was able to hear you. You were able to do it from your बट nose. बट जिस तरह से आप कर रही हैं, वो परफेक्शन नहीं है। बट यही तो, देखिए वही कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो जो ब्रीदिंग करनी है और करते हम गलत तरीके से हैं, तो फायदा थोड़ी करेगा। तो इसलिए इट नहीं, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भले ही आप 100 की बजाय 80 करो किसी चीज को, बट करो उसको आप वाजिब तरीके से। एब्सोल्युटली, क्योंकि तभी वो लंग्स की जो वो फोर्टिफिकेशन है वो स्टार्ट होगा। So, what do you think, Vikrant, the relevance of actually how you, now that you know a little bit about yoga from the start, as you said that you've been practicing and it has been giving you the results. I know you have to go. We'll just take next 2 minutes of yours now. नहीं नहीं, मैं मेरे So, पास टाइम ही टाइम है, आप घबराइए मत। just no, he's very modest. I know he's super busy. I know I can't hold you for a long time. I just wanted to ask you that how do you think yoga practice can be beneficial for all the sportsmen in the country, be it any sport, not just cricket world, because they have such a stressful life. They have pressure to perform. They have pressure of fitness. Then they have pressure of just, I was seeing recently, Anushka was making a meme with Virat Kohli being the captain, so much pressure. Kohli, run kahan hai? So they have, I can't even imagine the kind of mental pressure they have actually, performance anxiety, बहुत सारे stress उनको होते होंगे. तो जो आपने how, बोला ना परफॉर्मेंस एंजाइटी, आई थिंक योगा उनके लिए इज द नंबर 1 टूल। देखिए, जो टॉप क्लास स्पोर्ट्समैन होगा, क्रिकेटर होगा, उसकी जो ट्रेनिंग टेक्निक्स होंगी, उसकी जो रनिंग होगी, एबिलिटी होगी, वो डिफरेंट होगी, वो योगा से नहीं है। योगा यूज करते हैं वो लोग फॉर द स्ट्रेचेस, जो आप स्ट्रेच करते हैं, जो आपका मसल स्ट्रेच होता है, क्योंकि एज इट इज दे आर फिजिकली फिट, दे आर सुपर फिट। योगा मसल को, लिम्स को जो स्ट्रेच कराता है, वो स्ट्रेचिंग के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो वो दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ थंब। सेकेंड, जो आपने कहा ना परफॉर्मेंस, प्रेशर टू परफॉर्म, एंग्जाइटी, उसके लिए, जैसे आपको याद होगा मैंने एक बार आपके इंटरव्यू में भी कहा था कि
एक बार मैंने सचिन तेंदुलकर से पूछा था कि वो योगा क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जब वो करते थे तो वो एक तो डीप ब्रीदिंग करते थे, एंड वाइल ही इज बैटिंग, टेस्ट मैच चल रहा है, वनडे वाओ। मैच चल रहा है, बॉल के बीच में, बॉल खेलने से पहले या ओवर के बीच में, कहते मैं डीप ब्रीदिंग करता था। और इनिंग से पहले और मैच के दौरान जब वक्त मिले, मतलब नॉट ऑन द ग्राउंड, बाहर जाके या प्रिपेयरिंग फॉर द गेम, आप हैरान होंगी कि वो सबसे ज्यादा योगा आसन क्या करते थे। अब गेस बताइए मुझे क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से अनुलोम विलोम। शवासन। अरे वाह, टू प्रैक्टिस द डीप ब्रीदिंग। शवासन में सो दैट शवासन क्या है, हम लोगों को अगर समझाएं, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, शवासन मतलब आप एक कॉर्प्स की तरह लेटे हैं बिल्कुल। डेड बॉडी की स्टेट में चले हाँ। जाते हो, यू आर जस्ट लाइंग देयर, और वो उस वक्त आपको होश होती है, आपको कहा जाता है चलो जी अब शवासन की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने हाथ और पैर करते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, यू 30 सेकंड के कॉन्शियस। बाद कॉन्शियसली आप सबकॉन्शियस होते हैं, फिर आपका हम्म। ध्यान कहीं और चले जाता है। तो ध्यान हटाने के लिए एग्जाम से पहले बच्चों को क्यों घबराहट होती है, उल्टियां क्यों आती हैं, बड़े से बड़े मैच से पहले, भले वो बड़े बड़े प्लेयर हो, वो क्यों कहते हैं यार बटरफ्लाइज इन द स्टमक हो रही हैं, तो वो बिकॉज आप किसी चीज के बारे में जब सोचते हैं, भाई आपके बॉस ने आपको बुलाया है, आपको आके बताया जाता है यार बॉस बुला रहे हैं, आप उस वक्त सोचते हैं पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एंड देन यू अप्रेजल स्टार्ट का थिंकिंग, टाइम हो तब होगा। यू स्टार्ट थिंकिंग। तो शव या। आसन सचिन ने बताया था कि शव आसन का मतलब है कि मैं अपने ध्यान को हटा लेता हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं है, हम्म। मैं जो मैं सोच रहा था मैं कहीं और चला गया। हर इंसान हम्म। का डिफरेंट तरीका होता है ध्यान लगाने का, तो हम्म। वो उससे क्या होता है, आप जो इम्पेंडिंग आपको वो दिख रहा है, वो आपने उसको हम्म। हटा दिया। एंड मैंने एक बार उनसे पूछा कि सचिन भाई क्या ऐसे दिन आते हैं जहां पे आपको पता होता है कि आज रन बनेंगे, भाई टुडे यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल, उन्होंने कहा यस। मैंने इंट्यूशन होती है सोचा एक्स्ट्रा। यस, मैंने हम्म। कहा लेकिन यार स्पोर्ट्स है, एक अच्छा बॉल, किसी भी अच्छे दिन बुरे दिन एक ही बॉल चाहिए ना आपको आउट होने के लिए। हम्म। उन्होंने कहा मुझे होता है, हाँ वो दिन मेरे लिए अच्छे होते हैं, कभी कभी वही बात कि आप आउट भी हो सकते हैं। मैंने कहा वो कैसे दिन होते हैं, सिर्फ जिस दिन मैं सुबह उठता हूँ, मैच वाले दिन, जिस दिन मैं सुबह उठता हूँ और मेरी नींद खुलती है और मुझे अपने सामने अंधेरा दिखता है, काला खाली ब्लैक बोर्ड दिखता है, वो दिन मेरे लिए अच्छा होता है। मतलब मैं जब वाह। उठता हूँ किसी घबराहट में सो नहीं उठता हूँ, मेरे फोकस्ड। मेरे हम्म। जहन में कोई सवाल नहीं है। हम्म। जब आप घबराहट घबराहट होती है ना, आपके माइंड में बड़े सारे सवाल होते हैं, घबरा रहे होते हैं, तो कहते जब मैं शून्य में उठता हूँ, मैं उठा और मैंने देखा मेरे सामने एक खाली काले रंग की स्लेट है, मेंटल, सो एज टू से नोशनल, इसका मतलब कोई सवाल नहीं है मेरे माइंड में, दैट इज अ गुड डे फॉर मी। तो ध्यान हटाने के लिए हर इंसान के अपने अपने तरीके होते हैं, बट आई थिंक ओवर द लास्ट 10-15 साल में इंडियन क्रिकेटर्स हम्म। ने ये रियलाइज किया है कि योगा इज द बेस्ट बेस्ट टूल। जैसे मैंने कहा स्ट्रेचेस के लिए, जैसे आप बैक, अब कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं बड़ी फेमस जिन्होंने अपनी आधी क्रिकेट खेल ली बैक पेन में खेल ली, वीवीएस लक्ष्मण है फॉर वाह। एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर हैं, सहवाग हैं, कई सारे हैं। Hats off वो to योग, Yuvraj Singh's mental state also यू after भी such a चैंपियन, big, yeah, युवराज imagine सिंह तो the चैंपियन, not just physical ailment but mentally कितने strong होंगे वो कि वो फाइटर थे फील्ड ना, पर आके उन्होंने परफॉर्म फाइटर किया। थे, Amazing, I mean amazing, seriously. पंजाबी शेर निकले वो, उनके आई थिंक वो जीन्स भी होती हैं, उनके फादर उनकी मदर, वो जो फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने सिखाई। तो हम्म। जैसे बैक है, अब बैक के लिए अब आप क्या करवा सकते हो, बैक जब इश्यू हो तो आप सर्जरी कराओ, सर्जरी हम्म। कराई तो फिर उसके बाद इधर विच वे, या फिर हम्म। आप स्ट्रेचेस में जाते हो, आप योगा करते हो। कई मैंने सारे लोगों को से सुना था यार हमने ना योगा कर करके ठीक कर लिया, तो ऐसे ही मैंने अपने आप Wow. को देखा कि हम्म। जो आपने मुझे 2-3 आसन बताए, फिर उसके बाद बैक You should को join my सीधी रखना। class one day. आप मुझे बताइए, नहीं आई Done. कैन डू I'll दैट send you the link. होम एवरी डे, टेलीविजन पे लगा के हम लोग किया करेंगे, बल्कि मेरी तो योगा क्लासेस आजकल बंद है। जो हमारे योगा ओहो। सर हैं वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वो आ नहीं पाते, बड़े अच्छे आदमी हैं और वो बातें भी बहुत मारते हैं, बड़ी बातें करते रहते हैं, तो वो देख लेते हैं कि आज जिस दिन मेरा अच्छा मूड होता है, मतलब ज्यादा करने का मूड होता है, वो ज्यादा कराते हैं। जिस दिन वो समझ जाते हैं कि आज सर का मूड नहीं है, तो वो फिर मुझे कह मूड ही नहीं देते हैं कोई नहीं आपने आज कम करना तो कल कम कर लो। तो बट Okay. ऐसी चीजों के लिए बड़ा जरूरी है, आई थिंक जो करेक्ट पॉस्चर वगैरह है ना,
ये कैसे आप कितने बैठना दिन है, करते कैसे। हैं हफ्ते में? एक दिन 3 days, एक 3 days, 3 days अ वीक फिक्स है? 3 ओके। days, 3 days, हम्म। 3 days। और संडे मेरा क्रिकेट मैच हो ही जाता है। और जब से मैंने वेट लूज किया या योगा, योगा भी मैंने, ये सारी चीजें एक साथ स्टार्ट हुई। योगा स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर मई में, मीठा छोड़ा, इंटरमिटेंट स्टार्ट किया, तीनों चीजें एक साथ आई। तो मैं क्रिकेट जब खेलने गया उसके बाद से, तो मेरी तो फिटनेस अमेजिंग हो गई। मेरे से झुका नहीं जा रहा था बीच में, आई कुड नॉट वाओ। बेंड। बट अब वो, इन स्पाइट ऑफ द एज, फिटनेस भी ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि कई ऐसे पुराने कपड़े हैं, आप उनको दोबारा से पहन सकते हैं, यू फील हैप्पी। मैं ये नहीं हम्म। कहूंगा कि मोटा होना या पतला नो, होना इज हंड्रेड दी, परसेंट मोटा होना या पतला होना आई डोंट बट थिंक कीपिंग योर कैन वेट एवर बी इन द चेक हंड्रेड पैरामीटर्स। परसेंट मैटर्स। कीपिंग योर वेट इन चेक, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मैंने देखा कि ठीक है, फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइजेज जिम लोग करते हैं, इट इज यूजफुल। बट गरिमा, बिलीव मी, 60 to 70% इज वॉट यू ईट, वेन यू ईट। आई थिंक एंड कब या, खाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कब खाना बहुत जरूरी है। आप जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैंने उस समय आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप उसके बारे में बता रहे थे। एक्चुअली वो मेरा जो लाइफस्टाइल है वो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नेचुरल ही है, क्योंकि मैं 5:30-6 पे अपना जैसे ही सनसेट होता है मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, और उसके अच्छा, बाद नेक्स्ट डे प्रैक्टिस जब तक हो, बच्चे स्कूल जाएं, तो मेरा ऑलरेडी 8-8:30 बजे ब्रेकफास्ट होता है। सो तो विच विच गिव्स मीन्स कि मी आप दिस 12 14 14 years। घंटे आपने कर ही दिया, यस, सो 14 आई आवर्स आपने डोंट कर ही दिया। डाइट, और आई डोंट, एज यू सेड, क्या खाना है और किस समय खाना है, दैट इज व्हाट कीप्स माय वेट ऑलवेज इन चेक ऑन इट्स ओन, नॉट लाइक आई एक्टिवली ट्राई टू बी थिन और। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप हम्म। मानेंगी नहीं। और आई थिंक जितने लोग हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव या बाद में देखेंगे, मैं जब वर्ल्ड कप में था गरिमा, इंग्लैंड में था, तो मैं एक शो शूट कर रहा था सचिन तेंदुलकर के साथ। तो उन्होंने कहा कि यार, अच्छा, ही मेट मी इन अप्रैल एंड दिस इज जून। हम्म। कहते हैं यार, ओके। 2 महीने में व्हाट हैव यू डन। तो मैंने कहा सच में मैं वाओ। ऐसे 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 इंटरमिटेंट कर रहा हूँ, एंड दैट टाइम आई लॉस्ट अबाउट 4-5 kg। तो कहते यार वेरी गुड। कहते अच्छा, यू आर आल्सो डूइंग इंटरमिटेंट। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप भी कर रहे हो? कहते हाँ मैं भी करता हूँ। बट उन्होंने जो मुझे चीज सुनाई, आप सुन के यू विल बी शॉक्ड। उनके फादर इन लॉ, हु इज वेरी ओल्ड, आई थिंक 85 के करीब हैं, एंड वो सिवियरली डायबिटिक है। उनका हम्म। इंसुलिन लेवल बता रहे थे कुछ 60-70 था। तो ओ। कहते हैं कि मैंने मतलब उनके फादर इन लॉ ने, इंग्लैंड रहते हैं वो, उन्होंने इंटरमिटेंट किया। और कहते हैं कि उनका इंसुलिन लेवल अब 5 या 6 है। वो अरे आई वाज बाप रे, शॉक्ड। इट्स अ मैंने कहा बट ड्रास्टिक जो डिफरेंस। डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटीज है जिसको, हम्म। जिनको डायबिटिक हम्म। होते हैं, वो तो कहते हैं एवरी 2 hours दे हैव टू ईट। तो मुझे समझ नहीं आया। एंड देन आई वेंट बैक टू द होटल, और मैंने जाके ऑनलाइन रिसर्च की कि कैन डायबिटिक डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें आया यस। लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है, अगर जो डायबिटिक है, अगर वो इंटरमिटेंट करता है, उसको सूट करता है, उनका इंसुलिन लेवल ड्रास्टिकली गिर जाता है। फिर सुनील गावस्कर थे, मेरे साथ शो कर रहे थे। तो उनको भी मैं इंटरमीडिएट, मेरा पता क्या होता है, मेरे बारे में लोग मजाक करते हैं, जी आप बहुत बड़े सेल्समैन हो, कोई एक चीज कर लेते हो या खरीद लेते हो ना, तो बेचते रहते हो उसको, यू कीप ड्रमिंग इट। तो मैंने प्लीज डू इट फॉर माय योगा आल्सो। योगा तो गरिमा भंडारी का जो यूट्यूब चैनल है, एवरीबडी हैज टू सब्सक्राइब, प्लस गरिमा ओह, ऑन थैंक इंस्टाग्राम। यू। मैंने नहीं, आपके तो सारी स्टोरीज और वीडियोस हैं ही हैं, वो तो आई कीप वॉचिंग। और आपके बच्चे माशाल्लाह इतना अच्छा करते हैं, मतलब आई एम थैंक यू। सुपर इम्प्रेस्ड। तो मैंने सुनील गावस्कर को कहा, मैंने कहा सनी भाई मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। गरिमा यू वोंट बिलीव, अब नेक्स्ट टाइम सनी भाई आएंगे, मैं आपको उनका वीडियो भेजूंगा, या आप उनके साथ योगा का शो कीजिए। ये बिगिनिंग ऑफ जुलाई आई हैड टोल्ड हिम, 2 या 3 या 4 ऑफ जुलाई आई टोल्ड हिम। अभी परसों चौथ उनसे बात हो रही थी। He said since that day, which is about 9 months, मैंने कहते 4 या 5 दिन इंटरमिटेंट नहीं किया है, बाकी हर रोज उन्होंने इंटरमिटेंट किया है। आई वाज शॉक्ड। वो कह रहे थे मेरा भी इंसुलिन बहुत नीचे आ गया, उनको भी हल्की फुल्की डायबिटीज हो गई थी। हालांकि उनका थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। He said my first meal is generally around 1 o'clock, which means कि हम्म। वो 6 o'clock इन द इवनिंग से सीधा 10 o'clock इन ब्रंच द करते मॉर्निंग हैं? नहीं चलते। तो अच्छा, उनका वही है। दूसरा साइकिल। बट हालांकि जो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, सनसेट, आई थिंक हमारे जो, जिस तरह से आपकी योग भी चलता है, उसमें ये सनसेट यस। का बड़ा महत्व है। कहते हैं हमारी जो बॉडी है
वो एक बॉडी क्लॉक जो है वो जो बाहर सूरज के हिसाब से भी चलती है, सो इट इज एक्चुअली बेटर आप उसको 16 घंटे को या 14 घंटे को जो भी आपका है सनसेट के साथ रिलेट करें तो बेटर है। अब मैं रात को जी 10 बजे डिनर कर रहा हूँ और फिर मैं अगले दिन 2 बजे खाऊंगा, मे नॉट एक्चुअली वर्क गुड फॉर मी, यू नेवर नो। सो वो सिर्फ गैप की बात नहीं एज रिलेटेड, या मेनी तो फैक्टर्स आर देयर। सिर्फ ये नहीं है कि 16 घंटे फॉर मेल एंड 14 फॉर फीमेल्स, नहीं। आई थिंक सनसेट का बड़ा महत्व है। मेरा ये मानना है 6 o'clock फॉर मेल्स शुड बी द लास्ट जब आप इंटरमीडिएट करें, एंड 7-7:30 फॉर फीमेल्स शुड बी द लास्ट, उससे लेट नहीं होना चाहिए। Wonderful. So what happens in the occasions when you're going out for dinner, जो अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर कभी बाहर जाएं तो घर से खा के जाएं? हफ्ते में 3 बार करना है आपने, आप अपने दिन मुकर्रर कीजिए। मैं मंडे ट्यूसडे और थर्सडे 3 दिन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं 3 दिन कर लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं 2 दिन भी कर लूँ तो बहुत है। मैंने तो बीच में 3-4 महीने हुआ ही नहीं, मेरा तो हुआ ही नहीं। अब जैसे मैंने कल किया, मैं आज करूंगा, आई ट्राई अगर कल भी हो जाए, क्योंकि अब अलार्मिंग सिचुएशन आ गई। आप थ्राइस इन अ वीक कर लो। एंड दूसरी बात यह है, जो लोग सुन रहे हैं, अचानक से ये ना एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई आपने ये कर लिया इंटरमीडिएट और रिजल्ट आ गया। आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे 2 to 3 वीक्स के बाद। एक्चुअली आपकी बॉडी किसी भी चेंज को, अच्छे बुरे को एक्सेप्ट करती है 14 से 21 दिन पीरियड। Yes. तो जब आप, मेरा भी ऐसे हुआ था, जब 14 डेज हुए थे मुझे, तो मैंने 1 kg लूज किया। जैसे 21 हुए, आई लॉस्ट अबाउट 3 kg, एंड उसके बाद तो ठक 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 चलता गया। तो 21 दिन पेशेंस के साथ कीजिए एंड देन सी द रिजल्ट। एक और चीज गरिमा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने ये बहुत पढ़ा है, इसकी रिसर्च की है, एंड आई स्पोकन टू टॉप स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। पानी पीने पे भी देयर आर 2 व्यूज। Yes. बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट क्या कहते हैं 2 liters ऑफ वाटर एवरी डे। पानी कब पीना चाहिए लोगों को नहीं पता। Yes, लोग very रात को आप मैं देखता हूँ 2-2 ग्लास भर के लोग पानी पी रहे हैं, वो ब्लोट कर जाएंगे, दे विल ब्लोट, बिकॉज बॉडी आपकी वाटर रिटेंशन भी होता है। तो मैंने एक बार कपिल पाजी से पूछा था, द ग्रेट कपिल देव से, या उनका मैंने पढ़ा था इंटरव्यू, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका जो वाटर आप कंज्यूम करते हो, 80% वाटर यू शुड कंज्यूम टिल 6 o'clock इन द इवनिंग, और 6 के बाद जितनी देर आप जागते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% होना चाहिए। Yes. अब दिन में 100 अगर पीते हैं तो शाम के 6 बजे तक आपका 80% पानी हो चुका होना चाहिए, और जो बाकी बच गया 20 कब पीना, कितना पीना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस एब्सोल्युटली। और खाने के इमीडिएटली बाद कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं तब भी पानी पीते जा रहे हैं। अच्छा, खाने से पहले लोग तो पूरा कोक और पानी पेप्सी भी ठूस पीते लिया अच्छा, और खाने के बाद एकदम से पानी पी लिया। मैं तो बच्चों को भी मना करती रहती हूँ कि नहीं, यू शुड गिव हाफ एन आवर। योगा से पहले भी इमीडिएटली पानी नहीं पिए, योगा की प्रैक्टिस के इमीडिएटली बाद, प्रैक्टिस के समय तो बिल्कुल नहीं पिए, प्रैक्टिस के इमीडिएटली हाफ एन आवर तक पानी नहीं पिए। ये सारी स्मॉल मॉडिफिकेशंस है लाइफ के, बट इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए, जो लोग ब्यूटी के क्वेश्चंस पूछते हैं, बट ऑल्सो इंटरनल हेल्थ के लिए। ये छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, जैसे खाने तो के। आप ये भी बताइए ना कि पानी का लिंक क्या है, पानी का क्या लिंक है, क्यों लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए? I think they are saying that people are not able to hear me, so I need to remove the earphones. अच्छा, मैं पानी की ही बात कर रहा था कि पानी जो है, खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद क्यों कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए? क्योंकि एज यू सेड कि यू नो उससे वाटर रिटेंशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, एंड आपकी जो पाचन शक्ति है जो कंफ्यूज हो जाती है, वो इट गेट्स डिस्टर्बेड। जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, आपका जो खाना आप खाते हैं वो सेमी लिक्विड, आपके जूसेस जो होते हैं डाइजेस्टिव, उसमें जब पानी डाल दिया जाता है तो वो उसको फिर प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि तो ये मेटाबॉलिज्म आल्सो सफर। चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो एनर्जी में और फिर न्यूट्रिएंट्स में बन के हमारी बॉडी में जाए, बट पानी के साथ आपने उसकी खिचड़ी पका दी तो वो सब डिस्टर्ब हो गया सिस्टम, एंड देन यू विल हैव इश्यूज लाइक ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, और गैस हो जाएगी, और पता ही नहीं लगता लोगों को। नहीं यार, खाना तो हमने घर का ही खाया था, बट वो क्या गलत कर रहे हैं वो नहीं पता लग पाता। सही बात है। और एक और बड़ा नोशन है, एक और बड़ा नोशन है हम लोगों का कि जी मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, मुझे वेट कैसे बढ़ गया।
तो मैं उन लोगों को बता दूं कि फॉर्चुनेटली मैंने बड़ी दुनिया देखी है, मैं बाहर भी जाता हूँ, और मैंने एक चीज रियलाइज की है, जो हम इंडियन खाना खाते हैं और जिस तरह के मसाले हम घर पे यूज करते हैं, दैट कैन बी किलर, वो दैट कैन बी अ किलर। तो मैंने देखा है कि हम राइस खा लेंगे, रोटी उसके साथ खा लेंगे, फिर एक दाल आ जाएगी या नॉन वेज आ जाएगा, फिर सब्जियां आ जाएंगी, और इतना इतना मसाला हम डाल देते हैं। वो अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए। बट मसाला इन द सेंस कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का मसाला। अब जैसे आप कोई डाल रहा है कि वो जो पाउडर्ड वाले मसाले हैं, तो वो तो बहुत ही डेंजरस है, लीथल है, वो वेपन है। बट अगर आप ट्रेडिशनल गरम मसाले जैसे काली मिर्च है, दालचीनी है और लौंग है, इस तरह के जो ओरिजिनल ऑथेंटिक गरम मसाले हैं, साबुत लाल मिर्ची है या तेज पत्ता है, ये सारे यूज करें तो उससे डाइजेस्टिव प्रोसेस और स्ट्रांग हो जाता है और ज्यादा इग्नाइट हो जाता है। लेकिन आप देखिए, जो हम टेक अवे या छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वो तो मसाले उनके तो पाउडर वाले होते हैं ना। यू गो टू गुड प्लेस, वो हो सकता है कि उनके मसाले एग्जैक्टली। Which type of food? I don't know. So anybody, guys, we have a special guest today for next 2 minutes. If anybody wants But I to want ask कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल गरिमा से कीजिए। question. मेरे से तो रोज लोग मेरे से बोर हो गए हैं अभी। नहीं, इसमें से कुछ लोग होंगे जो मुझे फॉलो करते होंगे और इस चैट के बाद आपको फॉलो करेंगे, तो वो अभी भी गरिमा से आप सवाल कर सकते हैं। बाद में तो ऑफ कोर्स जब आप उनके साथ जुड़ जाएंगे तो कर ही सकते हैं। And yes, definitely we look forward to many more interactions. This is not the only one. गरिमा जी, लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत बड़ा। अच्छा, आपके लिए मैसेज है अमित चौधरी सेइंग, गरिमा जी मैं विक्रांत सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बस एक बार मेरा नाम बुलवा दो उनसे प्लीज। अमित चौधरी जी की हाल है भाई? सब ठीक है? रशिका इज विद अस। हाय रशिका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और रशिका पता नहीं आजकल योगा कर रही है कि नहीं कर रही है? शी आल्सो स्टार्टेड डूइंग योगा। अरे वाह, वंडरफुल, आई विल आस्क हर डेफिनेटली। A lot of people asked when we were chatting that what do you think about IPL? Please जाने से पहले ये बता दें कि क्या अभी तो देखिए IPL छोड़िए, भविष्यवाणी कर दो। मेरे क्लब के मैचेस भी नहीं हो रहे हैं इस वक्त, जो कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रही है। द बेस्ट केस सिनारियो गरिमा, द बेस्ट केस सिनारियो फॉर स्पोर्ट्स इज प्रोवाइडेड आप यू कनेक्ट द डॉट्स एंड कोरोना वायरस काबू में आना शुरू हो जाए। जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, अगर आईपीएल होना है, और प्रोवाइडेड सब कुछ ठीक रहे। एंड इन दैट इवेंचुअलिटी जो वर्ल्ड T20 होना है ऑस्ट्रेलिया में इन अक्टूबर नवंबर, मुझे लगता है वो पुश बैक होगा, फरवरी मार्च में ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता 6 महीने दुनिया भर के प्लेयर्स घर पे बैठे हैं और अचानक से आप उनको वर्ल्ड T20 खिलाने के लिए ले जाएं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ना, मैंने देखा है हजारों केसेस से, ऑस्ट्रेलिया ने इतना जबरदस्त लॉकडाउन किया है गरिमा, दे हैव ओनली 900 एक्टिव केसेस नाउ एवरी डे। जी, उनके नंबर जो है एक्टिव केसेस के गिर रहे हैं। सो मे बी अगर एक हफ्ते बाद हम नहीं, वो तो यूके को तो छोड़ दो आप, यूके तो इज आउट ऑफ हैंड ना, यूके, यूएस, यूरोप। ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने जिस तरह काबू किया है, तो ऑस्ट्रेलिया में है वर्ल्ड T20 इस साल अक्टूबर नवंबर, और मुझे लग रहा है जो वहां पे हालात है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है 0 तक पहुंच जाए बाय द एंड ऑफ मे, द वे दे आर कंट्रोलिंग इट। तो ऑस्ट्रेलिया विल बी रेडी, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा उनको थोड़ा और वक्त मिले। सो इन दैट इवेंचुअलिटी आई वुड लुक एट द वर्ल्ड कप T20 इन फरवरी मार्च, और इफ हिंदुस्तान में भी सब कुछ ठीक रहे और दुबई में भी कुछ मैचेस हो सकते हैं, आईपीएल एक्चुअली सितंबर अक्टूबर में होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, आपको देखने को मिलेगा। Perfect. मेरी Everybody, दुकान दोबारा शुरू हो जाएगी। Praying for all the cricket fans that they get to see their favorite cricketers in IPL very soon and they maybe recover from